Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends Halls. Today we have model answer to the latest cue card of the writing module, that is task 2 NSC. So today we are going to start with the model answer. So the question is, some people think that it is important to give children the chance to act independently. तो कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चों को खुद ब खुद आत्मनिर्भर होने का एक मौका देना चाहिए एंड मेक देयर ओन डिसीजंस फ्रॉम अर्ली एज, और उन्हें अपने डिसीजन शुरू से ही लेने देना चाहिए. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड रेलिवेंट एग्जाम्पल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. फर्स्ट में हम जस्ट मॉडल आंसर को रीड करेंगे. अगर आपको सिर्फ मॉडल आंसर चाहिए तो आप मॉडल आंसर फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इन डेप्थ में तो उस केस में आपको सेकेंड पार्ट भी देखना चाहिए. मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल आंसर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे. ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे था कि जरूरी है बच्चों को चांस देना कि वो खुद ब खुद, देखिए एक्ट इंडिपेंडेंटली माने खुद काम करना, अपने अनुसार चलना और अपने डिसीजन खुद ले सकना. तो हम इसमें BP2 बॉडी पैराग्राफ 2 या 3 बना सकते हैं. मैंने इस केस में 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाए हैं. फर्स्ट जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं और कंक्लूजन होते हैं. तो पहले मॉडल आंसर को देख लेंगे, फिर हम उसके एक्सप्लेनेशन को इन डेप्थ में स्टडी करेंगे. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. It is often argued that children should be given the opportunity to act independently and make their own decisions from an early age. While I understand the importance of fostering independence in children, I believe that this should be done gradually and within boundaries. I will discuss both the benefits and potential drawbacks of encouraging early independence and why it should be carefully managed. Body paragraph 1. One of the primary advantages of allowing children to make their own decisions is that it helps them develop crucial life skills. For instance, when children are given small responsibilities such as deciding what to wear or what to eat, they learn how to think critically and manage their choices. This contributes to building their confidence and self-esteem. Studies have shown that children who are encouraged to act independently tend to be more responsible and capable of making sound decisions as they grow older. Moreover, these experiences lay the foundation for them to manage more significant decisions later in life. Body paragraph 2. However, it is important to note that complete independence may not be suitable for children at a very young age. Children still need guidance and supervision to ensure they do not make decisions that could be harmful to themselves or others. For example, if a child were to make decisions about their education without any parental involvement, they might overlook the importance of studying certain subjects or might fail to understand the consequences of skipping school. Therefore, while independence is important, it should be balanced with appropriate parental guidance and support. Body paragraph 3. Furthermore, cultural and social factors also play a role in shaping how much independence children should have. In some cultures, children are raised in a more protective environment where decisions are often made for them by their parents. In these societies, giving children too much freedom too early may lead to confusion or even anxiety.
On the other hand, in more liberal societies, children may be encouraged to act independently from a younger age, which can help them develop strong problem solving and decision making skills. Finally, conclusion. In conclusion, I believe that while it is beneficial for children to have the chance to make decisions and act independently, this should be done in a balanced manner. Early independence can foster essential life skills, but it must be guided by appropriate parental support to ensure that children's decisions are constructive and beneficial to their development. Therefore, I somewhat agree with the statement but believe that there needs to be a careful approach to fostering independence in children. Okay, this was the model answer. Now we will analyze our response, our answer, and we will try to understand. हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस एसे में बढ़िया स्कोर ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एसे CAC, TA, TF, CC, LE और GRA पे एवेलुएट किया जाता है, तो हम वो सब कुछ स्टडी करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इट इज ऑफ्टन आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। ये तकरीबन ही इस पे विवाद किया जाता है। वह एक मुद्दा रहा है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली, माने कि किसी पे डिपेंडेंट ना होके, एंड मेक देयर ओन डिसीजंस फ्रॉम एन अर्ली एज, और वो अपने डिसीजन बनाए शुरू से ही, छोटी एज से ही, जब वो इतने लाइक कह सकते हैं कि हम अभी अडल्ट नहीं है। वाइल आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्टरिंग इंडिपेंडेंस ऑन इन चिल्ड्रन, तो देखिए यहाँ पे हम अपना जिसको थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं, जो कि सेकंड लाइन होती है आपकी इंट्रोडक्शन में, हम उसको देने लगे हैं और हमने वाइल लगाया है, तो नो डाउट हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। वाइल आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्टरिंग इंडिपेंडेंस इन चिल्ड्रन, तो फॉस्टर करना माने किसी में किसी चीज को जनरेट करना, बनाना, जबकि मैं समझता हूँ कि जरूरत क्या है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना। आई बिलीव दैट दिस शुड बी डन ग्रेजुअली एंड विद इन बाउंड्रीज, मैं सोचता हूँ कि ये धीरे धीरे और लगातार करना चाहिए और एक लिमिट में रह के। I will discuss both the benefits and potential drawbacks of encouraging. मैं डिस्कस करूंगा फायदे और जो इसके नुकसान है किसके, encouraging कि हम बढ़ावा देते हैं अर्ली इंडिपेंडेंस, एंड why it should be carefully managed, और क्यों इसको बड़े ही ध्यान से मैनेज करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। बॉडी पैराग्राफ 1। अभी देखिए यहाँ पे एडवांटेजेस की पहले बात करेंगे कि क्या फ़ायदे होंगे जब उनको इंडिपेंडेंट बना दें, वो खुद डिसीजन ले सकें। वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ अलाउइंग चिल्ड्रन टू मेक देयर ओन डिसीजन इज दैट, तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपका मैंने एक बात की थी सीसी की, तो सीसी के स्कोर के लिए हम ऐसे नेचुरल करेक्टर बनाएंगे। वन ऑफ दी प्राइमरी, यहाँ पे आपको नोट कर लेना चाहिए कि एक सिंपली एन एडवांटेज की जगह वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेजेस, तो ये है मेक देयर ओन डिसीजन इज दैट इट हेल्प्स देम डेवलप क्रूशल लाइफ स्किल्स, तो उनको मदद करता है। क्रूशल माने कि जो वाइटल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ स्किल्स मतलब कि स्किल होता है हुनर, किसी भी काम को करने की क्षमता अगर में है तो वो स्किल है। लाइफ स्किल माने कि वो जिंदगी के लिए, जैसे कि आपको खाना पकाना, ऐसा कुछ ड्राइव करना, ऐसा आना चाहिए। फॉर इंस्टेंस व्हेन चिल्ड्रन आर गिवन स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल भी लिख सकते थे, फॉर इंस्टेंस इससे बढ़िया है, ये आपका कोहेरेंस में हेल्प करेगा। व्हेन चिल्ड्रन आर गिवन स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेवारियां दी जाती है, सच एज डिसाइडिंग व्हाट टू वियर और व्हाट टू ईट, कि वो क्या खाएं या फिर क्या पहने, दे लर्न हाउ टू थिंक क्रिटिकली एंड मैनेज देयर चॉइसेस, वो सीखते हैं कैसे। देखिए किसी चीज़ पे हम गहनता पे सोच करते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। मैनेज देयर चॉइसेस माने कि वो अपने डिसीजन ले सके। तो यहाँ पे हम देखें फॉर इंस्टेंस व्हेन चिल्ड्रन आर गिवन स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज डिसाइडिंग व्हाट टू वियर और व्हाट टू ईट, दे लर्न हाउ टू थिंक क्रिटिकली एंड मैनेज देयर चॉइसेस, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया।
दिस कंट्रीब्यूट्स, अभी दिस का यहाँ पे बहुत स्कोर है, ये आपका कोहेरेंस में हेल्प कर रहा है, आप सोचिए इसके बारे में। दिस कंट्रीब्यूट्स, ये योगदान देता है बिल्डिंग देयर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, तो जो उनमें जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, उसको बिल्ड करना, माने कि बिल्ड करना होता है, इंक्रीज करना ही होता है, बढ़ाना, इंक्रीज करना। स्टडीज हैव शोन दैट चिल्ड्रन हु आर एनकरेज टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, अभी हमने एग्जांपल दे दिया, देखिए जरूरी नहीं कि फॉर एग्जांपल से ही दें, सिंपली हम कह सकते हैं कि स्टडीज हैव शोन दैट चिल्ड्रन हु आर एनकरेज टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, तो बच्चे जिनको बढ़ावा दिया जाता है कि वो खुद काम को करें, टेंड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल और एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग साउंड डिसीजंस, वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा जिम्मेवार बनते हैं और उनमें क्षमता आती है साउंड डिसीजंस। अभी देखिए साउंड का मतलब आपने ये नहीं समझ लेना कि आवाज़, यहाँ पे साउंड डिसीजन का मतलब है करेक्ट डिसीजन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी नोट कर लीजिए आप। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उनमें मैच्योरिटी आती है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट को मोरोवर से कनेक्ट करेंगे, ये फिर से आपका कोहेरेंस में हेल्प करेगा। These experiences lay the foundation for them to manage more significant decisions in life, तो ये जो experiences उनके होते हैं वो उनका एक बेस बनाते हैं, नींव रखते हैं, ताकि वो सही डिसीजंस ले सकें अपनी लाइफ में, बाद में, मतलब बाद वाली लाइफ में। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, पहले हमने कॉम्प्लेक्स बनाया था, तो मैं फिर बात करता हूँ GRE, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। रेंज का मतलब है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी देख लिया, आपका सिंपल सेंटेंस भी देख लिया। बॉडी पैराग्राफ 2, हाउएवर, देखिए अभी हम कंट्रास्टिंग कनेक्टर है, कॉमा लेगा बाद में अगर सेंटेंस के शुरू में लगेगा, और इसका मतलब है इसके उल्ट। It is important to note that complete independence may be suitable for children at a very young age. तो पूरी आत्म मतलब इंडिपेंडेंस अगर हम उसको देंगे तो ये सही नहीं होगा बच्चे के लिए, बहुत ही जब वो यंग है, जब उसकी उम्र कम है। Children still need guidance and supervision to ensure they do not make decisions. तो उनको फिर भी कुछ ना कुछ रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए, और ये देखने वाला चाहिए कि वो सही चल रहे हैं। टू एंश्योर होता है पक्का करना, दे डू नॉट मेक डिसीजंस, तो वो ऐसे डिसीजन ना लें दैट कुड बी हार्मफुल टू देमसेल्व्स और अदर्स, जो कि नुकसानदायक हुए उनके लिए और दूसरों के लिए भी। पूरी लाइन को ले लेंगे, चिल्ड्रन स्टिल नीड गाइडेंस एंड सुपरविजन टू एंश्योर दे डू नॉट मेक डिसीजन दैट कुड बी हार्मफुल टू देमसेल्व्स और अदर्स। नेक्स्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड वर टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर एजुकेशन, तो अगर किसी बच्चे को कोई डिसीजन लेना है, फैसला लेना है अपनी पढ़ाई से लेकर, विदाउट एनी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि शामिल होना, पेरेंटल माने पेरेंट्स का, तो जब उसको डिसीजन ले रहा है अगर वो पेरेंट्स उसमें नहीं इन्वॉल्व है, खुद ब खुद डिसीजन ले रहा है, दे माइट अंडरटुक द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग सर्टेन सब्जेक्ट, तो वो जो है वो माइट भी ये कह सकते हैं कि वो कुछ सब्जेक्ट को पढ़ने को जरूरी नहीं समझेंगे, और माइट फेल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्किपिंग स्कूल, और वो इसके बुरे प्रभाव नहीं समझ पाएंगे कि वो अगर स्कूल मिस कर रहे हैं तो क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं। इस लाइन को दोबारा से देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड वर टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर एजुकेशन विदाउट एनी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, they might overlook the importance of studying certain subjects or might fail to understand the consequences of skipping school. अभी कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ 2, मैंने कई बार बताया hence therefore, इन दोनों को आप यूज कीजिए। therefore अभी ये फिर कनेक्टर है, कॉमा लेगा, moreover के जैसे, however के जैसे, in addition के जैसे। while independence is important, जबकि जो इंडिपेंडेंस वो जरूरी है, इट शुड बी बैलेंस्ड विद अप्रोप्रिएट पेरेंटल गाइडेंस एंड सपोर्ट, तो इसको बैलेंस करना चाहिए पेरेंट की सपोर्ट से। बॉडी पैराग्राफ 3 लेंगे, अभी हमने कनेक्टर लगाया है, शुरू किया है फर्दर मोर से, तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ दी से शुरू किया था बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 हाउएवर से शुरू कर दिया, बॉडी पैराग्राफ 3 फर्दर मोर से शुरू कर दिया।
Furthermore, cultural and social factors also play a role in shaping how much independence children should have. तो जो कल्चर और सोशल के फैक्टर हैं, अभी हमने इसको एक्सप्लेन करना है, तो स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया, वो डिसाइड करते हैं कि कितनी उन्हें खुल देनी चाहिए, कितनी उन्हें इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। इन सम कल्चर्स, कुछ कल्चर में चिल्ड्रन आर रेस्ड, देखिए चिल्ड्रन आर रेस्ड इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर उठाना, उनको पालन पोषण करना। चिल्ड्रन आर रेस्ड इन अ मोर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, तो उनको ज़्यादा ही जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला होता है। वेयर डिसीजंस आर ऑफ्टन मेड फॉर देम बाय देयर पेरेंट, जहाँ पे डिसीजन उनके हैं वो माता पिता ही लेते हैं। इन दी सोसाइटीज, इन सोसाइटीज में गिविंग चिल्ड्रन टू मच फ्रीडम टू अर्ली, तो इन सोसाइटीज में बच्चे को जो अपने फ्रीडम दे दिया बहुत ही जल्दी, इससे कंफ्यूजन और इवन एंजाइटी हो सकती है। कंफ्यूजन माने कि उनको पक्का नहीं होगा, वो श्योर नहीं होंगे। एंजाइटी माने घबराहट, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो डिसीजन को खुद ले रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस होगा ना। तो हम इस सेंटेंस को देख लेंगे। इन दीज सोसाइटीज गिविंग चिल्ड्रन टू मच फ्रीडम टू अर्ली में लीड टू कंफ्यूजन और इवन एंजाइटी। ऑन दी अदर हैंड इन मोर लिबरल सोसाइटीज, तो दूसरी तरफ लिबरल सोसाइटीज में चिल्ड्रन में बी एनकरेज टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, बच्चों को बोला जा सकता है कि वो खुद ब खुद काम करें फ्रॉम अ यंगर एज, छोटी ही एज से, विच कैन हेल्प देम डेवलप, अभी ये उनको मदद करेगी डेवलप स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग माने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्किल, मैं पहले बात कर चुका हूँ। डिसीजन मेकिंग, कोई भी आपका फैसला लेना, तो पूरी लाइन बन गई। ऑन दी अदर हैंड इन मोर लिबरल सोसाइटीज children may be encouraged to act independently from a younger age, which can help them develop stronger problem solving and decision making skills. फाइनली कंक्लूजन की तरफ आ गए हैं हम। कंक्लूजन, आपको पैराग्राफिंग ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन लिखिए, एक लाइन लीव कीजिए, चाहे आप CBT ले रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रहे हैं, चाहे आप पेपर बेस्ड टेस्ट ले रहे हैं, आपको एक लाइन छोड़नी चाहिए। तो कंक्लूजन देखेंगे। इन कंक्लूजन, कामा, आई बिलीव दैट वाइल इट इज बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन टू हैव द चांस टू मेक डिसीजंस एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली, मैं सोचता हूँ कि जबकि ये फायदेमंद है कि बच्चे अपना डिसीजन लें और अपने अनुसार चलें, दिस शुड बी डन इन अ बैलेंस्ड मैनर, तो इसको एक बैलेंस रख के, बैलेंस बना के करना चाहिए। अर्ली इंडिपेंडेंस कैन फॉस्टर एसेंशियल लाइफ स्किल्स, तो जो स्टार्टिंग में उनको जो इंडिपेंडेंस मिलेगी, जो एक आज़ादी मिलेगी कि वो खुद अपने अनुसार चल सकते हैं। फॉस्टर में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किसी चीज़ को डेवलप करना, किसी चीज़ को बनाना, किसी में उजागर करना, एसेंशियल लाइफ स्किल्स, बट इट मस्ट बी गाइडेड बाय एप्रोप्रिएट पेरेंटल सपोर्ट, तो ये चलो फायदेमंद तो है, बट पेरेंट की गाइडेंस में होना चाहिए टू इंश्योर दैट, ताकि ये पक्का हो सके कि चिल्ड्रंस डिसीजन आर कंस्ट्रक्टिव, तो डिसीजन है जो कंस्ट्रक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी। कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस, जैसे कि हमने साउंड डिसीजंस की पहले बात की थी, ये सभी आपके टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी साइड में नोट्स बना लीजिए। एंड बेनिफिशियल टू देयर डेवलपमेंट, और फायदेमंद हो उनकी विकसिति करने, तो पूरी लाइन को ले लेंगे। अर्ली इंडिपेंडेंस कैन फॉस्टर एसेंशियल लाइफ स्किल्स, but it must be guided by appropriate parental support to ensure that children's decisions are constructive and beneficial to their development। अभी हम फाइनली therefore से इसको कंक्लूड करेंगे। therefore कॉमा पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। therefore, furthermore, moreover, हमेशा से कॉमा लेगा अगर लाइन इससे स्टार्ट हो रही है। I somewhat agree with the statement, मैं कुछ हद तक इससे सहमत हूँ, but believe that there needs to be careful approach, but मैं सोचता हूँ कि एक बड़े ही ध्यान से इस चीज़ को करना चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंस बच्चे में जनरेट करना चाहते हैं, तो फॉस्टरिंग का कुछ हद तक हम समझ सकते हैं कि किसी में कोई चीज़ फूकना। तो दिस वाज द मॉडल आंसर टू द लेटेस्ट राइटिंग टास्क टू एन essay. Don't forget to like, subscribe and share, friends all.